Good evening and hearty welcome to all present on today's webinar. I, Dr. Yogesh Ozare, Assistant Professor at Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning, Pune, welcomes all of you on this occasion of live webinar on meditation and extraordinary life. To know the secret of living extraordinary life and to become a successful personality, Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning, Pune has arranged this webinar, which will be delivered by Honorable Dr. Nilesh Vishwanath Patil, a life coach and also the founder of Nibbana, a worldwide mission of happiness. So, to brief about today's webinar, I welcome, first of all, Honorable Dr. Safia Farooqi Ma'am, Director, Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Center for Online Learning, Pune, to brief about today's webinar. Please, ma'am. Yeah, a very good evening to all of you. And it's my proud privilege to have such a big and honorable personality with us today, Dr. Nilesh Vishwanath, who in spite of his busy schedule has given us time and are available with us in the today evening. I warmly welcome you, sir, on the behalf of Dr. D.Y. Patil Center for Online Learning. And it's my proud privilege to welcome you here, sir. And I'm really grateful that in spite of your busy schedule and appointments, you have given me a time, and we'll be really grateful. And I just do not want to take much time because I want to take much of your knowledge and time to our learners. So once again, welcome you, sir, and thank you for coming here. Yes, sir. Namaste and very good afternoon, all of you. Yogesh, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you are audible, sir. Yes. Thank you. Our today's subject is meditation and extraordinary life. My dear friends, everyone wants happiness and success in his life. But very few of us will get that happiness, success. But in today's session, if you hear me properly and implement some things in your life, I guarantee you, you will get definite success, happiness from today onwards. If you practice meditation and some formulas in your life. Before going to ahead, I want to ask all of you, what do you know about meditation? What is meant by meditation for you? My second question is, do you do some type of meditation? Do you practice some type of meditation? If anyone of us can write, you can write in chat, then I can read. My next question towards you all is also, what specific you want from this session to get you maximum benefit in 30 minutes? What is specific you want about meditation and external life? I am going to give you my speech, no problem. But what exactly you want? Yes, Vaishali is saying she knows meditation. Vinay says, yes, I was trying but stop after some time. Dr. Yogesh Jozare says, Anapan meditation he used to do, now also doing very good. Good. Means some of us was doing very good. Vaishali also saying she has completed happiness program, a part of doing very good. It is really a good program in Art of Living, yeah. Okay. Now I ask you, what is meant by meditation for you? What do you know? You can just write down or unmute yourself and speak with me. What is meant by meditation for you? Just one or two answer I want from you. Okay, Vinay says to connect with our inner soul. Okay. Can I say something? Hello? Yeah.
Yeah. Yes, yes. Yes, meditation means to purify your mind in scientific way. Okay, Yeah. okay, Yeah. okay. I got what you said. Can I know your name, please? My name is Akash. Akash. Okay. Vinay says to connect with yourself. Vaishal is saying peaceful mind. Okay. Okay. Now I want a different question for you also. What is mean by extraordinary life for you? What you know about extraordinary life? Anything you know, just write down. It may be wrong or right, no problem for me. Just okay. Introspect yourself. Yeah, Anand, what you written, I have gotten, no problem. What is mean by extraordinary life for you? Do everything with happiness. Okay. By being simple and humble. Okay. Happiness and peace. Okay, no problem. चलो, कुछ लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे सुनने के बाद मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आने वाले सेशन और आपका समय ये सेशन होने के बाद डेफिनेटली एक्सट्राऑर्डिनरी और हैप्पी रहेगा. हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में मैं बात करना चाहूंगा. जब भी आपको लगे कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट रेज द हैंड और गिव मी सम चैट. I will explain. At the end of the program, we can take question and answers also. दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ये जो हौसले होते हैं, ये जो हिम्मत होती है, जो सोच होती है, उससे ही आदमी उड़ान ले पाता है. हर आदमी अपने जीवन में सक्सेस चाहता है, विथ हैप्पीनेस सक्सेस चाहता है. और सक्सेस में फिर वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो और कोई भी प्रोफेशन में हो, हर एक की सक्सेस की परिभाषा अलग अलग होती है. आज हम इस सेशन में आप जो भी सक्सेस चाहते हैं, आप लाइफ में जो भी सक्सेस चाहते हैं, जो हैप्पीनेस चाहते हैं, उसको अगर आप मेडिटेशन से जोड़ दे, आपकी सोच अगर बदल दे, तो आपके जीवन में मिराकल्स हो सकते हैं, मैजिक हो सकते हैं. मेरा स्वयं का अनुभव है और विगत भारतवर्ष के अनेक ऋषि मुनियों का यह अनुभव है. लेकिन ये मेडिटेशन शब्द, ध्यान, ये शब्द बहुत गहरा है. फिर भी हम कोशिश करेंगे ये आने वाले 30 मिनट में इसमें बात करें और आपको कुछ उसमें से कुछ किरणें, कुछ रेज आपके पास में पहुंचा सकूं. मैं आगे बात करने से पहले बस आपसे 2-3 बातें उम्मीद करूंगा. जब आप मुझे सुन रहे हो तो आपके दिमाग में जो भी कुछ है मेडिटेशन के बारे में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में, वो कुछ समय के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसे बाजू रख दें, क्योंकि आपका ज्ञान ही है जो मुझे सुनने में आपको तकलीफ देगा. मुझे सुनने के बाद आपका पूर्व ज्ञान आप कंपेयर करके आपको जो चाहे वो आप एक्सेप्ट करके आपके जीवन में जा सकते हो. लेकिन ये सेशन के लिए आपको जो भी आता है ध्यान के बारे में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बारे में, उसे थोड़ा बाजू रखिए. जस्ट कीप असाइड वॉट एवर यू नो अबाउट मेडिटेशन एंड अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ. सेकंड थिंग, जब आप इसे सुनेंगे तो जस्ट भी ओपन रहिए, ओपन माइंडेड रहिए. मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनिए, क्योंकि मैं आपके सामने विगत 22 वर्षों का मेरा स्वयं का अनुभव रख रहा हूं. देखिए दोस्तों, नॉलेज और विजडम ये दोनों में फर्क है. नॉलेज तो आज की दुनिया में, इन टुडेज लाइफ ऑफ वर्क, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड फ्रॉम सो मेनी सोर्सेस. लेकिन नॉलेज जब तक कन्वर्ट नहीं होता विजडम में, आपके अनुभव में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक उस नॉलेज का हमें कोई फायदा नहीं. आज के सेशन में मैं जानबूझ के आपको कुछ पीपीटी नहीं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपको कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ. आने वाले सेशन में शायद हम कुछ लिखेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से लंबी सांस लेके ये पूरा सेशन सुनना है. और मेरा विश्वास है जब आप इसे शांति से पूरे ध्यान से सुनेंगे
तो बहुत कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो कभी आपने उसकी उम्मीद भी नहीं की हो। तो बी ओपन माइंडेड टू लिसन दिस, और आपका पूरा माइंड वैकेंट रखिए ये सुनने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब उसी एंगल से इसे सुन रहे हो, और मैं आगे जाना चाहूंगा। दोस्तों, इस दुनिया का किसी राइटर ने जब रिसर्च किया तो उसे मालूम पड़ा 100 में से 95 पीपल आर, अबाउट 93-95 पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल, और ओनली 5-7% पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। अलग लोग होते हैं 5 से 7%, और 93 से 95% ऑफ पीपल ऑर्डिनरी, सामान्य लोग होते हैं। और रिसर्च करने के बाद एक बात मालूम पड़ी, इस दुनिया का 95% ऑफ मनी, फेम या जो भी अच्छी बातें हैं, ये 5% लोगों के पास है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 95% ऑफ बातें, 90% ऑफ फेम, पैसा, ये 5% लोगों के पास है, और बचा कुचा 5% ये 95% लोगों के पास है। इसीलिए 95% लोगों को हरदम पैसा, समय या जो चाहते हैं वो खर्च नहीं, उस बारे में वो हरदम सोचते रहते हैं। और रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा, निब्बाना पाथ ऑफ लाइफ में विगत 18 सालों से जब लोगों को सिखाता हूं, तो मैंने सुना था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग स्पेशली जन्म लेते हैं, स्पेशली बॉर्न होते हैं, स्पेशली ब्लेस्ड होते हैं। जब स्पेशली ब्लेस्ड या बॉर्न कहा जाए तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता, लेकिन रिसर्च और स्वयं के अनुभव से मैं कहता हूं कि अगर हम कोशिश करें, हर व्यक्ति कोशिश करे, तो वो सामान्य से असामान्य बन सकता है, 95 में से 5% में जा सकता है, उस उद्देश्य के लिए जो वो अपने जीवन में चाहता है। तो उसकी जब हमने रिसर्च की तो हमने ऐसा पाया कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। क्या होती है वो क्वालिटीज? उसमें से पहली क्वालिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल आर प्रोएक्टिव पीपल। आई रिपीट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल आर proactive people. Extraordinary people are unreasonable people. Extraordinary people have different aim in their life. They are very committed towards their time management. They are humble. They have forgiveness. These types of qualities extraordinary people having. That's why they are called extraordinary people. अभी बात आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको जब पूछा कि मेडिटेशन क्या होता है, तो आप में से कुछ लोगों ने बताया कि कनेक्शन विद सोल एंड एवरीथिंग। हम मेडिटेशन जानते हैं, उस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं करते। मेडिटेशन एक करने की बात है, और बार बार करने की बात है। इसे अध्यात्म मार्ग में हम साधना कहते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा साधना करेगा, उसका प्रयास करेगा, तप साधना में तपेगा, उसे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो अभी हम मेडिटेशन पे आते हैं। जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति की विशेषताओं की बात करते हैं, तो उससे मैं कनेक्शन में आपको मेडिटेशन की बात करता हूँ। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मेडिटेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, शांति से सुनिए, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मीन्स no mind. I repeat, meditation means no mind. Mind is not there. You know, mind is everything. Now I'm speaking and you are listening. You are listening by that mind. And if mind is there, interpretation is there. हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपने सामने जो भी होता है उसे इंटरप्रेट करो। हम शुरुआत, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं होता, हमें इंटरप्रिटेशन सिखाया जाता है। इसे गोरा कहते हैं, इसे काला कहते हैं, इसे स्त्री कैसे कहते हैं, इसे पुरुष कहते हैं, दिस इज रिच, दिस इज पुअर, ये डिफरेंशिएशन। और इस माध्यम से हम अपना ब्रेन का पूरा प्रोग्रामिंग होता है।
आर यू एग्री विथ मी? जो भी जिनका भी वीडियो ऑन है वो मुझे बाय थम्स अप आप कह सकते हो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो आपके पास लैंड हो रही है, आप सुन पा रहे हो. By thumbs up, by raising thumbs up, you can connect with me because so many people are here. Their videos is on different mode. Okay. अभी जो मैंने आपसे बात कही और आपने मुझे थम्स अप बताया, this mechanism will happen due to mind only, right? तो माइंड ही है जो हम सबको. यस रेशमा, you have raised a hand. Is any question towards from you? Please write down the question, or you can unmute your mic. Okay. रेशमा शायद मैं जो कह रहा हूँ वो सुन पा रही है, उसके लिए मुझे उसने हाथ बताया, ऐसा मैं समझ के आगे चलता हूँ. आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तब शायद इंटरेक्टिव सेशन अपना हो सकता है आखिरी के 5 या 10 मिनट में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हमें परमिट करेगा. तो मेडिटेशन मीन्स नो माइंड. मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जहां पर मन नहीं होता. अभी मन नहीं होता है तो क्या होता है, जस्ट समझने के लिए बोलता हूं, क्योंकि और डीप बातें हैं. वहां पे बस सोल होता है, बॉडी माइंड एंड सोल. बॉडी माइंड एंड सोल. बहुत से लोग जानवर जो होते हैं वो बॉडी लेवल पे काम करते हैं, आदमी माइंड तक आता है. बहुत कम लोग हैं जो सोल तक पहुंच पाते हैं. मान लो अभी पैंडेमिक चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा. लॉकडाउन खुला, फिर से लॉकडाउन की बातें शुरू हो रही, और विगत 1 सालों से पैंडेमिक चल रहा है. तो इस पैंडेमिक के बारे में आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो भी इंटरप्रिटेशन चल रहा है, ये सब कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है. इस पैंडेमिक की तरफ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, जब आप जो सीन है उसे देखना शुरू करोगे जैसा है वैसा, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन स्टेट. आपके सामने जो भी हो रहा है उसे आप बस देख रहे हो, आप देखने वाले बन जाते. दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन स्टेट ऑफ माइंड. अक्सर ऐसा नहीं होता है. मान लो घर में किसी के झगड़े होने का कारण क्या होता है, या ऑफिस में अगर बॉस आपको डांट दे तो आपको बुरा क्यों लगता है? जब बॉस आपको बोलता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, या आपके लिए कहा गया एक वाक्य है जिसका आप इंटरप्रिटेशन करते हो और आपको बुरा महसूस होता है. राइट? आर यू एग्री विथ मी? जब भी आपको कोई बुरा बोलता है तो आपको बुरा महसूस होता है. आर यू एग्री विथ मी? यस. जब कोई आपको अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा फील होता है. राइट? अभी सोचो, वहां से आप माइंड को निकाल दीजिए. अगर माइंड ही नहीं रहेगा तो सामने वाला आपको अच्छा बोले या बुरा बोले, इज एनी डिफरेंस इन योर बॉडी? नो. आपको कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, आपके सामने जो भी होगा आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी. नो इंटरप्रिटेशन इज देयर, नो स्टोरी इज देयर, नथिंग. बायोकेमिकल रिएक्शंस आर देयर इन योर बॉडी, और बायोकेमिकल रिएक्शन अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं रही तो फिर कौन सा स्ट्रेस और कौन सी बीमारी? ये सब भी जो कुछ हो रहा है ये बस अपनी मन की उपज है, ड्यू टू माइंड ओनली, एंड वी आर वर्किंग ऑन माइंड. अभी हम उस तरफ आते हैं. मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हैव फर्स्ट क्वालिटी, दे आर प्रोएक्टिव पीपल. अभी प्रोएक्टिव का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जीवन में जो भी आपके साथ हो रहा है या आपके सामने जो भी हो रहा है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज में अच्छी चीज देखना, किसी भी सीन में अच्छी बात देखना. अक्सर ऐसा नहीं होता है. हमारे मन का प्रोग्राम ही इस तरीके से बनाया गया है, बन जाता है इस समाज में, कि हम पहली बात जो सोचते हैं वो बुरी बात सोचते हैं. मुझे माफ करें, सेंटेंस
कहते हुए, सोचते हुए कि हम जो भी बात बोलते हैं, हम जो भी बात कहते हैं, हमारे मन में पहले बुरी बात आती है। ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन ग्रेट पीपल ऑलवेज, उनको हर चीज में अच्छी बात दिखाई देती है। अभी पैंडेमिक में अगर मैं पूछूं अच्छी बात क्या है, तो आपको सोचना पड़ेगा। पैंडेमिक तो बुराई दिखाई दे रहा है। ये पैंडेमिक में भी अच्छी बातें हो रही है अगर आप देखना शुरू करें। ये प्रोएक्टिवनेस, जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है, वो आती है मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेट करते हो, आपके माइंड को प्रोग्राम करते हो, तो आपका माइंड इस तरीके से बन जाता है कि आपके सामने होने वाली अच्छी या बुरी चीज आप बस देख पाते हैं। फिर आप ये देखना जब शुरू करते हैं, ये इतना मैजिक है। जितना आप डीप डीप इसमें जाओगे, साधना करोगे, फिर नो वन इज देयर, वो पर्सन आपको डिस्टर्ब कर पाएगा। हमारे सब डिस्टर्बेंस का रीजन माइंड है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो देयर इज नो डिस्टर्बेंसेस इन योर माइंड, नो स्ट्रेस इन योर माइंड। मेडिटेशन करने के बाद जो अच्छा लगता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के बाद नींद अच्छी आती है, हैप्पी हैप्पी लगता है, दैट्स द रिजल्ट। बट द मेन फंक्शन ऑफ मेडिटेशन और मेन एम ऑफ मेडिटेशन टू क्रिएट माइंड एज ए विटनेसर। हमें विटनेसिंग करना है, साक्षी भाव में जाना है। जब अगर आप मन को इस तरीके से, इस लेवल पे आप लेके गए जहां पे आप बस साक्षी भाव से देखते रहे, then no one can disturb you, और सक्सेस आपके हाथ में। अभी हम सक्सेस की तरफ आते हैं। ग्रेट पीपल ही सक्सेसफुल क्यों बनते हैं? देखो दोस्तों, 100 लोग अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पाएंगे, फिर वो एक्टर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, कोई प्रोफेशन में आप है, 100 लोग चाहते कि मैं ग्रेट बनूं, सब लोग प्रयास करते ग्रेट बनने के लिए, लेकिन अंतिमतः बस 5 लोग पहुंच पाते हैं। ये 5 लोग वहां तक क्यों पहुंच पाते हैं? 95% ऑफ पीपल क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि रास्ते में जो रुकावटें आती है, रास्ता है तो रुकावटें हैं, तो रुकावटें उन्हें रोक देती है, क्योंकि माइंड वहां पे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन ग्रेट आदमी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल का सेकंड क्वालिटी, दे आर ऑलवेज अनरीजनेबल पीपल। वो कभी रीजन नहीं बताते हैं। उनका एम फिक्स होता है। एम तो सबका फिक्स होता है, लाइफ का एम तो पता ही नहीं होता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है। लाइफ में बहुत सी चीजें होती है जो आपको डाइवर्ट करती है, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। व्हाट्सएप, फेसबुक से लेके सब चीजें, माइंड है कि एक जगह पे रुकता नहीं, और इसे रुकवाने का काम मेडिटेशन करता है। तो अब अभी हम फास्टली, अपने पास 10:30 मिनट बाकी है, हम 5 मिनट के लिए एक इंस्टेंट ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो भी बैठे हैं, मैं आपको जस्ट 5 मिनट के लिए एक ध्यान करवाता हूँ। जल्दी से आप जहाँ भी बैठे हो, चश्मा निकाल के जस्ट आंखें बंद करके मेरे साथ आंखें आप बंद करेंगे। जहां पर भी आप बैठे हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, रास्ते में हो, आंखें बंद करेंगे। जस्ट सी द मैजिक ऑफ मेडिटेशन, और देखेंगे 5 मिनट के बाद, क्योंकि आखिरी के 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप आंखें बंद करेंगे मेरे साथ, आंखें बंद। सिर से लेके पैर तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स करना है। सिर से लेके पैर तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। मैं बस योगेश से पूछना चाहूंगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है, या उदय से पूछना चाहूंगा, अभी एज पर टाइम मैनेजमेंट 9:30 मिनट अपने पास बाकी है। कितने मिनट के लिए हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर योर शेड्यूल और द पार्टिसिपेंट शेड्यूल? You can extend it, sir. You can extend it. That totally depends upon you, sir. Okay. There is no fixed time limit for that. Okay. knowledge के लिए सर टाइम नहीं हो रहा था कुछ. Yes. So, Dr. Nilesh, you can extend at least 20 to 30 minutes. Please carry on. Great. Probably, thank you, Sophia. As per my time management, 9 minutes are left there. Now I can extending 20 minutes more, means 29 minutes we can extend in this. तो मैं आपका ध्यान अभी और शांति से ले पाऊंगा। तो अभी आप जहां पर भी है, वहां पर
आपके मोबाइल पहले आप कर दीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस का एक वन ऑफ द रीजन है जो आपको ध्यान में शायद डिस्टर्ब, मतलब जो भी ऑनलाइन है वो नहीं, या उसको म्यूट कर दीजिए, या किसी को बोल दीजिए कि 5-7 मिनट के लिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या मोबाइल बजता भी है तो हमें उसकी तरफ देखना है। तो अभी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकली ध्यान क्या काम करता है। दिस बेसिक ध्यान दैट आई एम गोइंग टू टीच यू विद यू। और भी डीप ध्यान आप मेरे यूट्यूब के वीडियो पे या मुझे व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। तो आंखें बंद, सिर से लेके पैर तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। सिर से लेके पैर तक, यू हैव टू रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड स्लोली स्लोली आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका संपूर्ण शरीर शांत रिलैक्स हो रहा है। आपका संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है। आप मेरे साथ एक साथ 200-300 लोग ध्यान कर रहे हैं। ये 200-300 लोगों का पावर ऑफ ध्यान बहुत जोर से काम करता है। संपूर्ण शरीर ध्यान अवस्था में डीप डीप जा रहा है। आंखें बंद करते ही आपके मन में विचार आना शुरू हो रहे हैं। आंखें बंद करते ही आवाज आना शुरू हो रहे हैं। उन आवाजों को, उन विचारों को आने दो और धीरे से जाने दो, उन्हें रोके नहीं। शायद आंखें बंद करते ज्यादा आवाज आपको सुनाई देंगे, फिर गाड़ी, रास्ते, चिड़िया, जो भी आपके आसपास आवाज चले उन्हें आने दे, धीरे से जाने दे। हमारे मन में संपूर्ण दिन में 90,000 से लेके 1 लाख थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स जो होते हैं, ये कि जितने पॉजिटिव होते हैं, जितने नेगेटिव होते हैं, उसका ही असर अपने बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसी से बीमारी पैदा होती है, उसी से हम बीमार पड़ते हैं। तो इन थॉट्स की तरफ देखते रहो, कौन से थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। उन विचारों को आने दो, धीरे से जाने दो, उन्हें रोके नहीं। जैसे आकाश की तरफ हम देखते हैं, बादल आते हैं, बादल निकल जाते हैं, हम सोचते नहीं कि ये बादल क्यों आ रहे हैं। हम रास्ते के बाजू खड़े होते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी निकल जाती है, हम उसे इंटरप्रेट नहीं करते, बस देखते रहते हैं। इसी भांति आने वाले जाने वाले सांसों की ओर, विचारों की ओर, आवाजों की ओर देखते रहे, देखने का प्रयास करें। सिर से लेके पैर तक संपूर्ण शरीर और ज्यादा रिलैक्स हो चुका है। यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड। जस्ट वॉच योर थॉट्स, just watch your sounds which are coming outside, inside. Just watch them. बहुत अच्छे। अब इसी अवस्था से पेट की ओर ध्यान देते देते हमें लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस बाहर छोड़नी है। सांस जब लेंगे या छोड़ेंगे तो स्वयं को भी सांसों का आवाज नहीं आना चाहिए। इतने शांति से और इतनी गहराई से हमें सांसें अंदर लेनी है, छोड़नी। जब आप सांसें अंदर लेंगी तो पेट का आकार बड़ा होना चाहिए। जब आप सांसें छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट की ओर ध्यान देते देते हमें सांस लेना। You have to start abdominal breathing. Just breathe, just take breath inside, very slowly, gently inside. Sir? कोई बीच में नहीं बोलेगा, जैसा आता है वैसा करते रहिए, क्योंकि बाकी साधक ध्यान कर रहे हैं। धीरे से सांस
आप ले रहे हैं अंदर, धीरे से सांसें बाहर छोड़ रहे हो, स्वयं को भी सांसों का आवाज नहीं आ रहा है. You are just taking breathe inside and out very slowly. You are doing abdominal breathing silently, gently. अभी महसूस करें कि पहले से बहुत ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है. आप महसूस कर पाएंगे पहले से आपको और शांत लग रहा है. Just check out what's feeling in your mind, in your body. Definitely there is relaxation and calmness in your body. पहले से और ज्यादा अच्छा लग रहा है. सांसें आ रही है, जा रही है. विचारों को आने दो, आवाज को आने दो, उन्हें बस साक्षी भाव से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे. अभी अपना संपूर्ण ध्यान दोनों नासिका मार्ग जहां से जाती है, उस नासिका मार्ग के ऊपर पूरा ध्यान लाना है मन का, और आती जाती सांसों की ओर बस आपको देखना है, मात्र आपको देखना है. अभी जानबूझ के सांस ना ले, ना छोड़े. यू हैव टू जस्ट वॉच योर ब्रीथ. डोंट टेक और एक्सेल. ब्रीथ intentionally. Let breathe come and go. Just watch the breath at your both nostrils of your body. देखते रहे सांसों की ओर, आते जाते सांसों की ओर बस देखना है. जानबूझ के सांस ना लेना छोड़े. सांसों के अपने आप जाने दे, आने दे. सांसों की ओर देखने का प्रयास करें. सांसों की ओर देखते देखते अपना मन विचारों के साथ दूर दूर तक निकल जाता है. शायद निकल गया होगा. उसे फिर से सांसों की ओर लाओ. उसे आदत नहीं कंसंट्रेट करने की, कोई बात नहीं, शुरुआत है. उन सांसों की ओर ध्यान दीजिए जो सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. बस देखते रहे, साक्षी भाव से देखते रहे. मन को सांसों की ओर कंसंट्रेट करें. आने वाले 5 मिनट में आपसे बात नहीं करूंगा. आप सबको प्रामाणिक रूप से इन सांसों की ओर ध्यान देते देते ध्यान का अभ्यास करना. इन सांसों की ओर ध्यान देना ही अपना बेसिक ध्यान है. आने वाले 5 मिनट मैं आपसे बात नहीं करूंगा. आपको सबको सांसों की ओर ध्यान देने का अभ्यास करना है.
विश्राम, विश्राम, ध्यान की अवस्था से धीरे से बाहर आना है। ध्यान की अवस्था से धीरे से बाहर आना है और धीरे से आंखें खोलनी है। आंखें खोलने में जल्दबाजी ना करें और दोनों हाथों को ना मसले, इस तरीके से हाथ लगाते वैसा ना करें, जस्ट आंखों को धीरे से खोलें, क्योंकि जो शांति, जो रिलैक्सेशन मिला है उसे महसूस करें, महसूस करें। आप चाहे तो आंखें और 1 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए बंद रख सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद एक रिलैक्सेशन, एक शांति महसूस होती है, उससे और डीपली महसूस करें। धीरे से आंखें खोलें। अगर आपने आंखें खोली है तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे हाथ रेस करके या चैटिंग पे लिख के बता सकते हो। कैसा लगा आपको ध्यान करने के बाद? बढ़िया, वेरी गुड। करके आप बता सकते हो 1 बाय 1, ताकि मैं समझ पाऊंगा। आकाश को नींद आ रही थी, या नींद आना भी एक अच्छी बात है। हम जब थके हुए होते हैं तो नींद आती है। ओके, आपको जयश्री को माइंड स्ट्रेस फ्री लगा, योगेश जी को रिलैक्स लगा, सागर को रिलैक्स लगा, आशीष को पीसफुल लगा, रिलैक्स, सोनल कोलपे जी को रिलैक्स लगा। गागुरी जी को रिलैक्स लगा। ये स्लीप वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब बहुत थक चुके हैं आप सब। जिनको नींद आ रही है ना, नो प्रॉब्लम, आप जस्ट ध्यान शुरू करिए, आपकी नींद गुल हो जाएगी। नींद और मेडिटेशन में अल्फा वेव्स फॉर्म होते हैं, नींद में भी वही होते हैं, लेकिन नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि उन्हें रिलैक्स रिलैक्स लगा। रिलैक्सेशन लगना, ये इट्स अ पॉजिटिव साइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोगों को ये ध्यान करने में दिक्कत आई? आप मुझे बाय वीडियो या बाय स्पीकर बता सकते हो। कितने लोगों को दिक्कत आई? मीन्स कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाए आप? नो प्रॉब्लम, ग्रेट। जी हाँ, ऑफिस ऑफिस में आपको टाइम चाहिए मेडिटेशन के लिए। हम डीवाई दादा से कहेंगे कि सब इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन शुरू करवा दे, शायद जल्दी शुरू होगा। ओके, आपका आकाश जी कह रहे हैं कि आपका मन भटक रहा था। हम एक क्वेश्चन आंसर में शायद ये क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं कुछ आगे की बातें आपसे करना चाहूंगा। देखो, हमने प्रैक्टिकली मेडिटेशन किया अभी। हम सुनते बहुत है, बातें बहुत करते हैं, किसी के बारे में थॉट सुनते हैं, लेकिन मेडिटेशन हमने किया। ये मेडिटेशन करने के बाद जो आपको रिलैक्स लगा, जो भी आपको लगा, इसका एक ही मतलब था, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, कि आपका माइंड उस समय नहीं था। जब माइंड नहीं होता है तो आप रिलैक्स होते हैं। और जब अभी देखो माइंड शुरू हो गया काम करना, कितने बजे है, कहाँ जाना है, हाँ क्या करना है, अभी कितना दिन सेशन, कितना समय सेशन चलेगा, मुझे ये बातें पूछनी, एवरीथिंग स्टार्टेड, राइट? तो ये इससे छुटकारा जब आपका होगा, तब आप शांतिमय जीवन जी पाएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी है आपके सामने, जो हमारे निब्बाना पाथ ऑफ सेशन में मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं 3 दिन का एक सेशन लेता हूँ, बेसिक सेशन होता है, जिसमें कंप्लीटली आदमी का स्वभाव बदलता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। उसमें से एक कहानी मैं आपके सामने
साक्षी भाव की कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो ठीक से तो। मेरा आवाज आपको ठीक से आ रहा है? एक गांव था, एक गांव के बाहर एक मंक रहा करता था। मंक का काम था ध्यान साधना करना, और ध्यान साधना से साधना प्राप्त करना। किसी उसी गांव में किसी एक लड़की को वो प्रेग्नेंट रही, उसको बच्चा हुआ। जब किसका नाम लेना था तो वो डर गई, उसने उस मंक का, उस साधु का नाम लिया। तो लोग हाथ में मारने के लिए, हाथ में बम्बू वगैरह लेके उसको मारने को गए, और बच्चा लेके उसको बोले, हे महाराज तूने क्या किया, क्या किया, ये ले तेरा बच्चा। वो बोलता अच्छा मेरा बच्चा। तो उसने हाथ में ले लिया। जैसे उसने बोला कि हाँ मेरा बच्चा, तो वैसे लोगों को विश्वास हुआ कि इसका ये बच्चा है। लोगों ने उसको बहुत पीटा मारा, और उसकी जो झुग्गी थी वो जला दी। उसके बाद वो आदमी तो उसी गांव में, क्योंकि वो साक्षी भाव में रहता था, उसने कोई स्टोरी नहीं बनाई, वो उसी गांव में फिर से भीख भीख मांगने आया। वो हर घर जाता था, भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे माते। अभी वो बदनाम हो चुका था लोगों की दृष्टिकोण से, उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। साथ में बच्चा भी था, लोग उसे हंस रहे थे। वो हर जगह जाके बोलता था भिक्षाम दे माते। अच्छा मेरा दोष है उसमें क्या बात है, ये बच्चे का क्या दोष है, ये बच्चे के लिए कुछ चीज दे दो। करते करते जब पूरा गांव घूम चुका, वो उस घर के सामने आया वो घर में वो बच्ची रहा करती थी, जिसका वो बेटा था। वो आवाज, बच्चे का आवाज सुन के माँ का दिल दहल चुका। माँ बाहर आई, वो बोली ये बच्चा इनका नहीं है, मैं गलती से इनका नाम ले लिया। फिर से लोग इकट्ठा हुए। लोग बोले महाराज अगर ये आपका बच्चा नहीं था तो आपने क्यों हाँ बोला, इसको दे दो, ये आपका बच्चा नहीं। वो बोलता अच्छा ये मेरा बच्चा नहीं है। उसने उसको वापस ले लिया, लोगों ने वापस ले लिया। अब ये दोनों सीन में अगर आप देखेंगे तो जब उसको बच्चा दिया जा रहा था तब भी वो बोला अच्छा ये मेरा बच्चा है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। और जब बच्चा उससे वापस लिया गया तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। ए नो रिएक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर। अभी मुझे बोलो, इस महाराज को, इस ऋषि को क्या कोई डिस्टर्ब कर सकता है? क्योंकि इसके बारे में जो भी कुछ होता है उसे ये आदमी रिएक्शन नहीं देता है। साधना से मन को इस लेवल तक आप ले जा सकते हो कि आपके सामने जो भी कुछ होता है अच्छा या बुरा, वहां पे रिएक्शन नहीं आएगी। इतना सिंपल है अध्यात्म। इसे कुछ लोग और शब्दों में शायद हमें कंफ्यूज कर देते हैं, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अध्यात्म मेडिटेशन का एक ही उद्देश्य है, वो करने के बाद आपको आपका मन साधना साक्षी भाव में निकल जाए। एक बार अगर आप साक्षी भाव में निकल जाते हो, फिर अपने आप स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। हमें कोई ऋषि बनना नहीं है, हमें कोई बाबा बनना नहीं है, लेकिन अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक क्या कम चीजें होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है? क्या कम चीजें होती है जो हमें नाराज करती है, हमें हमें हैप्पी करती है? लेकिन अगर हम मन को साक्षी भाव से ले जाते हैं, उस लेवल तक हम लेके जाते हैं, देन नो वन देयर हु कैन डिस्टर्ब यू। फिर जो सक्सेस आप चाहते हो, जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। फिर जो भी मैं आपको बोलता हूं कि ग्रेट पीपल्स आर प्रोएक्टिव, ये प्रोएक्टिवनेस बातों करने से नहीं आता, आपको साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे आने वाले संकटों के आगे जा। लेकिन ये जाएंगे कैसे आप? उसके लिए आपके पास टूल क्या है? नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन जस्ट यूज दिस टूल ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करते जाइए, आपके मन को साक्षी भाव में लेके जाइए। देन फिर देखिए जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। वरना दोस्तों आप सब ने पाया होता, हम जो चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि अलग ही कुछ हो जाता है और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लोग होते हैं कि आपको उस मार्ग से भटकाना चाहते हैं। किसी को अच्छा हुआ अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप साक्षी भाव में होते हैं, आप शांत होते हैं, आप समता में होते हैं, तो आप शायद ये संकट, ये बुरे लोग या बुरी शक्तियां, उनसे दूर होकर आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो प्राप्त कर सकते हैं। सफिया मैडम जो बोला था, मैडम 7 मिनट 4 सेकंड आपने पास बाकी, शायद मैं सवाल जवाब अगर नहीं लूँ तो समय खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल जवाब ले लें, ताकि ये सेशन हम यहाँ तक उसको कॉमा करके और आगे बढ़ाएंगे। जब भी समय परमिट करेंगे मैं आपसे और बार बार मिलते रहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत डीप है। और कोई अगर इस तरीके से सुनना चाहता है तो मैं हरदम तैयार हूँ।
आपको और सेशन देने के लिए। ये बात इतनी डीप है, इतनी साइंटिफिक है, उस साइंटिफिक तरीके से हमने 20 साल से रिसर्च करके आपके सामने लाई है। और समय परमिट करेगा तो मैं और सेशन आपके साथ लूंगा। ये 6.5 मिनट हम सवाल जवाब लेंगे। मैं चाहूंगा अभी बात आपके हाथ में माइक देता हूँ मैडम में, या जो भी है मैनेज करने वाला। Yes, sir. Sandeep, Nilesh sir, can you continue with the question answer session right now? Yes, we can continue. So I request Professor Sandeep Singh sir, if you have any questions, you can directly ask to sir. Sandeep sir, please. Thank you, Joyare sir. Right now, we are not having any question on Facebook, but I request all the participants who have joined on through Zoom session, they can unmute themselves and ask the question, or they can type the question into the chat box. Sir, first I take this opportunity to ask one question, sir. There is one question always that is in front of me, or we can say that is a problem with me. That whenever I am going to do the meditation, I had followed Sandeep Maheshwari, I am following Vipassana, but sometimes I am not being able to concentrate. So, meanwhile, when I woke up at 4 p.m. also, I had tried to do that, but I was not being able to disconnect to external world. So that is the problem which happens mostly in meditation. So the little bit of problem to concentrate on one thing, that's the main thing. So how you can guide us for increasing our concentration? Dr. Yogesh, I have got your question completely. The answer of first question is that I request follow one guide, follow one method to do meditation. Either Sandeep Maheshwari or Vipassana. Anything that you like, first of all, follow one thing to meditate. And if you are not concentrating, concentration is if problem for us, you may for you, it means that you may need more meditation. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, साक्षी भाव में नहीं जा पा रहा है, इसका आपका माइंड ज्यादा इंटरप्रेटिव स्टेट में है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो उससे कॉन्सेंट्रेट करना यही एक उपाय है, और उसके लिए आपको ध्यान ज्यादा करना पड़ेगा। योगेश। Okay, thank you, sir. Yes. Sir, we have one question in chat box. How to continue it as a habit? I tried to do it for a few days and then stop doing the meditation. I think that happens so many times with me also. I do meditation for a month or 2 months, but that will not come to my practice also. That is my question also. Yeah. A very nice question. And I think so many people are suffering from this question, this phenomena in their life when they came across meditation. दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन कुछ दिन करते हो, बाद में छोड़ देते हो, उसको हैबिट नहीं बनाते, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो पहली बात, उसका इम्पोर्टेंस आपको नहीं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, अभी आपने पसंदीदा व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट? सबके फोन में है, स्मार्टफोन में। तो दिन में से एक बार तो हम वो ग्रुप देख लेते, भले हम उन्हें रिस्पॉन्स ना दे, रिप्लाई ना करें, एक बार तो हम क्लिक करते, राइट? यस और नो? एक बार, कितने आप बिजी रहो, एक बार तो करते हैं, क्योंकि आपको वो दोस्त, वो ग्रुप से कुछ तो लगाव है, कुछ बेनिफिट है, कुछ आपका कनेक्शन है। पहली बात, हमें मेडिटेशन का महत्व जानना होगा। मेडिटेशन करने के बाद अपने जीवन में कितना मैजिक होने वाला है, यह अभी हमें पता नहीं है। एक बार उसका ब्यूटी अगर हमें समझ में आ गया, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम सिनेमा देखना चाहते हैं, बहुत दूर हम जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और 3 घंटा हम हैप्पीनेस लेके आते हैं, राइट? वैसा ही अगर कोई आपको बताए कि ये मेडिटेशन करने के बाद आपको सोने की खांड मिलने वाली है, तो आप उसको करेंगे। इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें और बातें करनी होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे केमिकल बदलते हैं, कैंसर से लेकर सर्दी तक सब बीमारी का रीजन क्या क्या होता है, ध्यान उसको कैसा ठीक करना। सेकंड थिंग, कोई भी चीज अगर आप 21 डेज करते हैं, 21 डेज उसको अगर रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन हैबिट फॉर्मेशन के लिए उसका इंपॉर्टेंस जरूरी है। तो 21 डेज आप करिए,
आप मुझे सुन पा रहे हो? आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir, we can hear you. ओके, 20 करिए, उसका इम्पोर्टेंट जानिए। और जब हम बातें करेंगे आज के डेट में बीमारियां किस तरीके से फैल रही है, सर्दी से लेके कैंसर तक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, तो आपको जब इसका इम्पोर्टेंस और प्रोबेबल फ्यूचर अगर मालूम हुआ तो मेरे ख्याल से संदीप जी इससे कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं तो फिर इसको छोड़ते तो फिर अपने पास क्या उपाय है जो हम ये बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। फिर डायबिटीज हो और हार्ट का प्रॉब्लम हो, अभी दुनिया में वी आर नंबर 1 एट डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस, एंड मेडिटेशन इज ओनली solution, powerful solution for this hypertension, BP, heart problem and diabetes. मेरे ख्याल से ये उत्तर आपको शायद मिल गया होगा जो आप चाहते हैं। जी सर, So, thank you. sir, I have a one question. Okay. Yeah. Hello. Yes, Hello. sir. Yeah. Please tell your name first, then you can ask the question. Hello. My name is Akash, sir. So I wanted to ask you that who is your spiritual guru, and from where you have learned this technique, that meditation technique? You are Who asking. inspired you for that? Yes, Yeah, yes. yeah. Who is You your are, spiritual guru, and where you have learned this technique? yeah, Who Akash, inspired you for that? you are so naughty. You are Yes, asking me a basic question about my life. No problem. दोस्तों, एक समय था मैं जिंदगी में बहुत फेमस था, लेकिन मैं हैप्पी नहीं था। मेरे 10 एक ब्रांच थे, दिन को 1 लाख रुपए कमाता था। एक दिन मैंने संन्यास लिया, 6 साल दुनिया से दूर रहा, वो ढूंढने के लिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो बुद्धा, महावीर को, सब लोगों को मिला। तो 6 साल में संन्यास अवस्था में था, तो सब गुरुओं का मैंने पठन किया। कुछ गुरुओं के पास पहुंच पाया, किसी गुरु के पास नहीं पहुंचा। सिद्ध समाधि योग नाम का एक कोर्स था, शायद अभी कम हो चुका है। ऋषि प्रभाकर जी मेरे स्टार्ट में गुरु थे, मेरे बहन ने बताया और मैं जाके बैठा। उससे पहले मैं पढ़ता बहुत था, किताबें बहुत पढ़ता था, और करते करते सबसे आखिरी में मुझे ओशो मिले। मतलब ऋषि प्रभाकर जी, विपश्यना, रविशंकर जी, रामदेव बाबा, एंड सो मेनी गुरुज आर देयर, और आखिरी में ओशो। ये सब के मिला के ये सब मेरे गुरु है। और सब गुरुओं के पास में जब मैं गया और मैं खुद हैप्पीनेस ढूंढ रहा था, तो मुझे जो प्रैक्टिकल चीजें लगी वो मैंने उठाई और मैंने वो करके देखी। मान लो विपश्यना में हम जाते हैं, तो विपश्यना में आपको 10 दिन बात नहीं करनी होती है। अगर यहाँ पे किसी ने विपश्यना की होगी उसको पता होगा। और लाइफ में ऐसा चलता नहीं कि लाइफ में आपको बात करनी पड़ती है। अगर हम लैंडमार्क फोरम में जाएंगे तो लैंडमार्क फोरम में बातें बहुत होती है, ध्यान कुछ नहीं होता है, राइट। तो कुछ प्रैक्टिकल से हम छूट जाते हैं। अभी आध्यात्म में इतना ज्यादा भी ना करे कि वो आप प्रैक्टिकल से छूट जाए, और इतना भी प्रैक्टिकल मत बने कि आप आध्यात्म में निकल जाए। हमें बैलेंस चाहिए। तो सब गुरुओं का अभ्यास करके मैं मेरे स्वयं के अनुभव से आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। आकाश जी। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन है हमारे चैट बॉक्स में। हाय सर, कैन यू प्लीज सजेस्ट some method which could be used daily, and how much time should we devote daily for the meditation ideally? या देखो, मेरे YouTube पे मैं आपको फ्री में ये बेसिक मेडिटेशन, इसके आगे भी और मेडिटेशन है मेरे YouTube पे। आप जो मैंने डेवलप किया हुआ मेडिटेशन है वो आप देख सकते हो। मैं मेरे WhatsApp पे अगर आप मुझे पूछते हो, क्योंकि किसी को भी देने में अर्थ नहीं, वो सामने वाला भी उतना ईगर चाहिए। ये कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं अध्यात्म में काम करने का, उसका कोई चार्ज मैं चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता चले कौन कर रहा है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो फॉलोअप कितना ले रहा है, और ये करने की बात है। तो आप मेरे यूट्यूब पे विजिट करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पर। मैं आपको ये सब लिंक भेज दूंगा जो आप चाहते हैं। दिन में 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट, जितना ज्यादा 7 मिनट के अंतराल से आप जितना ज्यादा टाइम लगा के आप कर सकते हो, उतना आप ध्यान का अभ्यास करें। जितना आप ध्यान करेंगे, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन ओनली। Good evening, sir. My Yeah. name is Siddharth. Yeah. My question is with context to these days and in the times to come by, we are slowly and gradually moving from real to virtual world.
Meditation is one technique, as you rightly said, but outdoor sports is outdoor sports or outdoor activities as is an alternative to this. For example, I am very much passionately following cricket, and I'm a cricket player. So it helps me to keep me fit. So is outdoor activities an alternative to meditation? So my answer is outdoor activity definitely helps to concentrate you, but meditation is different and outdoor concentration activities are different. You can definitely do that action, but for your inner health, for your mind, you must have to do meditation by sitting, by doing, by playing, by dancing. But the aim of meditation is to no mind state is there. In sports also, we have no bound of time and we have not हम सब भूल जाते हैं जब हम खेलते हैं, राइट? ये भूल जाना ही ध्यान है, लेकिन जितना मुझे आप पूछोगे तो स्पोर्ट्स भी करो और ये ध्यान भी आप करते रहो. Correct. And sir, my second question is, how frequently we must do meditation in a day? मैं जैसे ये कहना चाहूंगा सिंपल भाषा में, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे माइंड के लिए 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट जब भी आपको समय मिलता है आप जरूर ध्यान किया करें. एक 7 दिन आप करके देखें, बस 7 दिन करके देखें एंड सी द मैजिक इन योर बॉडी. रोज करना चाहिए. थैंक यू. हॅलो. या सर मराठीत बोललं तर चालेल? खूपच छान, बोलू शकू आपण, काय अडचण. सर सूरज होळे माझं नाव, सांगलीतून बोलतोय. सर मला सध्या सर ॲलोपॅथिकच्या गोळ्या चालू आहेत आता सध्या, म्हणजे स्ट्रेस संदर्भात. ओके. तर मला कसं स्ट्रेससाठी आणि म्हणजे एकदम मूड असा फ्लक्च्युएट होतो की थोड्या वेळ दिवसभरातून एक दोनदा असं सिच्युएशन येते की एकदम घाबरल्यासारखं होतं, पोटात असा गोळा आल्यासारखं होणे, अशा गोष्टी होतात. आणि मग त्यासाठी मग जे डॉक्टरांनी मेडिसिन वगैरे दिले आहेत, पण त्या मी रेग्युलर खात नाही, का तर त्याची भीती वाटते मला की याची सवय वगैरे लागेल किंवा नाहीतरी त्याचे काहीतरी दुष्परिणाम होतील वगैरे, असं काहीतरी होतं. त्यामुळे मी काय करतो, जेव्हा तशी सिच्युएशन होते त्याच वेळी मी त्या मेडिसिन घेतो. मग डॉक्टरांना भेटलो मी. डॉक्टर म्हणाले की तुम्हाला जो हे आहे दिलेले जे मेडिसिन आहे तो कोर्स तरी तुम्हाला कम्प्लीट करावा लागेल ऍटलिस्ट. पण मला त्याचीही भीती वाटते त्या कोर्सची कम्प्लीट करायलाही. तर एक्झॅक्ट मला काय केलं पाहिजे मला हे सांगा तुम्ही, की ते कंटिन्यू गोळ्या काही 2-3 महिन्यासाठी कंटिन्यू केल्या पाहिजेत की त्याला म्हणजे कसं काही अवॉइड करता येईल आणि यातून बाहेर निघता येईल? ओके. माझं प्रामाणिक मत सांगतो, शक्य होईल तेवढं सायकॅट्री मधल्या गोळ्या आपल्या टाळायच्या आहेत, कारण त्याच्या इफेक्ट पेक्षा साईड इफेक्ट जास्त असतो, सवय लागते. आता डिप्रेशनच्या आपण गोळ्या घेऊ, डिप्रेशनच्या आपण गोळ्या घेतो पण सुसायडल प्रवृत्ती वाढते, म्हणजे डिप्रेशन हा स्वतः सुसाईडकडे नेतो आणि पुन्हा मेडिसिनने आपण वाटतो. पर्याय नसेल 100% ॲलोपॅथिक गोळ्या घ्या, त्यात काहीच बात नाही. पण तुम्हाला सेकंड पर्याय उपलब्ध असेल, जसं मेडिटेशन, काही खूप सुंदर मेडिसिन इन आयुर्वेदा आहेत की ज्या तुमच्या मेंदूला पोषण देऊन तुमचे न्यूरॉन्स आणि बेसिकली मित्र तुझ्या याचं रूट कॉज शोधलं पाहिजे. आपण काय करतोय, सिमटम आलं, स्ट्रेस आला, त्याचं सिमटम त्याला औषध देतोय, पण का घडलं तुमच्या बाबतीत, असं का घडलं? आता मी एवढं मोठं काम करतोय, DY पाटलांसोबत आहे, 50 एकर पासून तर खूप खूप मोठा पसारा असतो, चालू असतो. मला लवकरच महाराष्ट्रात ते काम दिसेल. खूप संकट येतात, मग ती पॉवर कुठून येते? स्ट्रेस मला येतो कमी जास्त प्रमाणामध्ये, तुम्हाला तो आलेला आहे. कुठे काही कारण घडलेलं आहे, कारणावर आपलं जावं लागेल, त्याचं रूट कॉज शोधावं लागेल. रूट कॉज साठी काही काउन्सिलिंग लागेल, काही मेडिसिन्स लागतील आणि मेडिटेशन हा त्याचा बेस असेल. 100% तुम्ही यातनं कायमचे बरे होऊ शकतात. होईल तेवढं पात्र हे सध्या जे करतायत की स्ट्रेस आल्यानंतरच मेडिसिन नका, कारण तुमच्याकडे दुसरी रेमेडी असेल तर ती औषधं बंद करा, नसतं ते औषध सुरू ठेवा. समजलं? तुम्ही दुसरी रेमेडी काही घेत असाल त्याच वेळेस तुम्हाला ती औषधं बंद करता येईल. पण आशेची पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की तुमचा हा प्रॉब्लेम खूप सहजपणे बरा होऊ शकतो विथ द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा आणि मेडिटेशन. ओके ओके सर. ते कसं आहे, माझा भाऊ जो आहे तोही डॉक्टर आहे, त्यांनी मला गाईड केलं की या संदर्भात की ते म्हणजे फ्रेग्रन्स वगैरे, म्हणजे ते अत्तरसारखं वगैरे काहीतरी त्याचे ते हे असतात, त्याच्यातूनही आपल्याला एकदम
लिंक मिळू शकते, म्हणजे एकदम मूड चेंज होऊ शकतो वगैरे त्याच्यातून. हे वेगवेगळे जे परफ्युम्स आहेत वगैरे, जे असं काहीतरी आहे, त्यातूनही आपलं माइंड एकदम चेंज होऊ शकतं. आणि तेही सांगतोय मेडिटेशनचे वगैरे महत्व वगैरे. तर पण कसं होतंय, जर संध्याकाळी जर त्या गोळ्या घेतल्या तर झोप इतकी लागते की मग 8-9 वाजेपर्यंत झोपलं जातं ते. ठीक आहे. सकाळी उठायचंही ते अवघड झाल्यासारखं होतंय ते. तुम्ही जे- मग ह्यातून मार्ग मी शोधण्याचा खूप म्हणजे त्या माझ्या रूटला जाण्याचा मी स्वतःही प्रयत्न करतोय. मग थोडंफार समजतं की काही ना काहीतरी जॉब मधले वगैरे टेन्शन असतं, हे बाकी वगैरे इकडे तिकडे काही ना काहीतरी फॅमिली वगैरे असं. आता इतक्या काही मेजर कोणत्या गोष्टी नाहीयेत, पण अचानक होऊन जातं त्या गोष्टी, असं आहे सध्या. हम्म. नाही, मी ते सांगतो, आपल्या जीवनामध्ये ना आपल्या जन्मापासून आतापर्यंत अशा काही मोठ्या घटना घडतात आणि त्या आपल्या सबकॉन्शियसली आपल्या मनाला हर्ट करून जातात. तुम्हाला पण हो सर, माहित नसतं. एक घटना घडली होती, जे आता 1-2-3 वर्षापूर्वी माझे वडील वारले. त्यामुळे तिथून त्याच्यापूर्वी मला असं काही सुद्धा नव्हतं. आणि एकटा असल्यामुळे आता सध्या घराची जबाबदारी वगैरे माझ्यावरती आहे. पण असं नाही की पूर्णपणे मला कमवलंच पाहिजे अशीही काही सिच्युएशन नाहीये. पण त्याचाही थोडासा स्ट्रेस आहे की वडील गेलेत. ठीक आहे. हा जो इश्यू चालू झाला तो तिथूनच झालेला आहे, वडील गेल्यापासून. मी तेच सांगतोय तुमच्या. हा. आणि बरं, हे आपल्या हातात नसतं. तुमचं सबकॉन्शियस मन काय टाईपचं आहे, तुम्ही किती हम्म. इमोशनल आहात, तुमचं इमोशनल क्वेश्चन कसा आहे, सोशल क्वेश्चन कसा आहे, बरोबर तुम्ही एकट्या स्वभावाचे आहेत का, कमी बोलतात जास्त, हे सर्व विषय लक्षात घेतले. तर बरोबर. त्या सबकॉन्शियस मनात लपलेल्या गोष्टी आपल्याला बाहेर काढाव्या लागतील एका सायंटिफिक मार्गाने. बरोबर आहे. ओके. पण ओके. आणि हाच एक तुम्ही आता जे बोललात ना, मेडिसिन खाल्ले की झोप लागते, झोप लागले की मग हा. आपण जास्त जेवण करतो, ही सायकल हो, आहे. हो. म्हणून टेम्पररी बेसिसवर ॲलोपॅथी मेडिसिन बऱ्या आहेत, पण हम्म. आयुर्वेदामध्ये आणि अध्यात्मामध्ये याचा कायमचा उपचार आहे मित्रा. रिलॅक्स राहा, ओके. सर्व बरं होऊन जाईल, चिंता करू नका आजपासून. माझा ओके. ओके नंबर सर. मी शेअर करतोय चॅटला गेला वाटतं, तुम्ही लिहून घ्या तुमच्या पेन असेल तर, आणि ओके मला सर. आवडेल गाईडलाईन करण्यात. 9511 9511 911 हा. 299. ओके सर. ओके. आणि nibbana.in नावाने आपली साईट आहे. निब्बाना, NIBBANA, nibbana.in हा. नावाची साईट. डॉक्टर निलेश पाटील तुम्ही टाका वेबसाईटला, युट्यूबला, तुम्हाला माहिती मिळेल, किंवा या टीम कडून तुम्ही घ्या. मला आवडेल ओके. आपलं गायडन्स करण्यासाठी, ओके कारण सर. ओके. ओके. मानसिक प्रश्न मला माहिती किती अवघड असतात. हो सर. ओके. ओके सर. ठीक आहे. थँक्यू. येस, थँक्यू. वैशाली म्हणतात ब्रीदिंग टेक्निक्स मस्ट बी बिफोर मेडिटेशन. येस, ध्यान करण्यापूर्वी आपल्याला ब्रीदिंग टेक्निक्स डेव्हलप केल्या पाहिजे, त्याशिवाय ध्यान लागणार नाही. मला वाटतं कोण है, सफिया जी? अजून काही प्रश्न आहेत? Yes, sir. We have few question in chat box. Like how is it possible to live in this world without reacting to the external situation? तो हो सकता है यार, बस प्रयास करना पड़ेगा. और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि माँ बाप से लेके अपने बेटे तक, अपने बॉस तक, अपने असिस्टेंट तक, कोई अपने मुताबिक काम नहीं करता. हर एक का अपना अपना एक नजरिया होता है. लेकिन ये वर्ल्ड में हम हैप्पी हो सकते हैं अगर हम स्वयं पे थोड़ा काम किए, प्रयास किए, साधना किए, तो सब होता है. One question, sir. What need to be done for sound sleep? मेडिटेशन करो. मेडिटेशन इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर साउंड स्लीप. 7 दिन करिए आप. 7 दिन करने के बाद कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई किसी की जरूरत नहीं आपको. बस एक 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट, जहां पर भी आप दिन में समय मिलता है आप करते रहिए. ये जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से. Can meditation help in frustration? डेफिनेटली, डेफिनेटली. फ्रस्ट्रेशन का रीजन ही है कि आपके मन के मुताबिक कुछ चीज नहीं हुई, इसलिए रिएक्शन फ्रस्ट्रेशन आया है. राइट. फ्रस्ट्रेशन आया मीन्स माइंड ज्यादा एक्टिव है, कुछ तो मन के विरुद्ध हुआ है, खिलाफ हुआ है. जब आप मेडिटेशन करोगे तो माइंड उसको अपने आप छोड़ देगा, वो भी फ्रस्ट्रेशन का जो बात हुआ है. और आप साक्षी भाव में जब जाओगे तो माइंड विल गेट रिलैक्स ऑटोमेटिकली. सर, एक क्वेश्चन होता. हे तुकाराम महाराजांचं एक सुंदर वाक्य आहे की मन करा रे निर्मळ, साऱ्या दुःखांचं कारण.
तर मन निर्मळ करा याच्या मागे काय अर्थ आहे किंवा ती प्रोसेस काय आहे मनाला निर्मळ करण्याची? बरोबर. मन ते करारे प्रसन्न. ते तुकाराम महाराजांनी सांगितलं आणि कसं करायचं मन निर्मळ. हो हो. निर्मळ करणे म्हणजे याच्या मागे काय अर्थ आहे? मला जर विचाराल तर माझा अर्थ तोच आहे की मनाला साक्षी भावाला नेणं. बरं, मनाचा एक स्वभाव आहे मित्र, एक लक्षात, तुम्ही खूप छान प्रश्न विचारला की मनाचा आपला एक स्वतःचा स्वभाव आहे. मन नेहमी अभावात जगतं, मन चंचल आहे, मन इंटरप्रिट करतं. मनाला जी एक गोष्ट भेटली तोपर्यंत समाधानी असतं आणि पुढची गोष्टच्या मागे धावतं ते, म्हणजे ते अभावात जगतं. अभाव म्हणजे काय, समजा माझ्याकडे आता हा कोणता 6+ किंवा 7+ मोबाईल असेल किंवा 8+ असेल आणि 10-10+ काढला ऍपलने, तर माझं मन इथे होणार नाही समाधानी, त्याला 10+ पाहिजे, राईट? याला म्हणतं अभाव. तसंच त्याच्यामध्ये एक स्वभाव असतो, काही घडलं की इंटरप्रिट करायचं, वाईट पहिले विचार करायचा, चंचल असतं, आता इथं दुसऱ्या ठिकाणी. तर अशा मनाला निर्मळ करणं म्हणजे त्याला शुद्ध करणं. कारण बालपणापासून जे आपलं एज्युकेशन सिस्टीम आपली फॉल्टी आहे. आपल्याला शिकवलं गेलं चांगलं वाईट, काळं गोरं, आता सर्व विसरायचं आपल्याला आणि त्याला निर्मळ करायचंय, त्याला एकदम प्लेन करायचंय. ती तुकारामांना अभिप्रेत आहे. आणि एकदा जर आपण ध्यान केलं, जसा मळका कपडा असतो, डर्टी कपडा, तो कसा साफ होतो डिटर्जंट मध्ये टाकल्यानंतर, जस्ट लाईक दॅट आपलं संपूर्ण मन निर्मळ होतं. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. थँक्यू सर. Good evening. This is Deepak here. या दीपक. My question is that in a daily routine, we sometimes we are getting negative, and that negativeness like keeps for 1 hour, 2 hours, or for a longer time. But somewhere we get immediately positive. But that positiveness will not get more extended or further time. So how we can be stick to the positiveness? Now this is a very nature of a mind, पॉजिटिव नेगेटिव. मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के आगे लेके जा रहा हूँ. मतलब पॉजिटिव भी कुछ समय के लिए रहता है. मैं हरदम सिखाता हूँ कि हर सुख की और हर दुख की अपनी अपनी एक टाइम होता है. मान लो आपने बड़ी कार ली, बड़ा घर लिया, एक सुख आया अपने जीवन में, कितना समय रहा. आप एक नया ड्रेस लेते हो, नया साड़ी लेते हो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन सुख था, उसका एक समय था. वैसे दुख का भी समय होता है. मैं जिस निब्बाना, निर्वाणा, हैप्पीनेस की बात बोल रहा हूँ, ये सुख और दुख के परे है. एक बार आप मेडिटेशन में जाते हो, साधना करते हो, साक्षी भाव में जाते हो, यू विल गेट दैट थिंग विच इज बियॉन्ड सुख और दुख. Okay. Thank you. पॉजिटिव नेगेटिव के आगे और एक दुनिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता आपको. अच्छा हुआ तो भी आप चेहरा वैसा ही आपका, और नेगेटिव के बाद भी चेहरा वैसा. नो सिगरेट, नथिंग, फिर आपको कुछ लगता नहीं. फिर अपने आप दारू बनते अपनी बॉडी के अंदर. जो कबीर कहते हैं, एक बार आप पहुंच गए मन की उस अवस्था में, तो फिर आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका रहना सहना, सब चीजें बयां कर देती है आप कितना हैप्पी है. जी. Thank you. Jojari sir, I think we end up with the session, question answer session. Yeah. Sandeep sir, if there are no questions, we can conclude this particular webinar. So I'm Sandeep sir. Yes. Hello. Yes, sir. Yes. Have you confirmed that there are no questions on even onto the Facebook No, and sir. into our chat box? Okay, so thank you so much, sir. Yes. एक सवाल दिख रहा है सर मुझे, लास्ट में आया है कि कौन सी मुद्रा हम ध्यान में यूज करें. तो देर आर सो मेनी मुद्राज, बट ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहला ये करने के बाद ये जो चिमुट बनती है, ये ज्ञान मुद्रा अगर आप करते हो तो भी आप चलेगा, या इस तरीके से भी आप बैठ सकते हो ये मुद्रा. ओके, लेकिन ज्ञान मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हो. Okay, sir. Okay. So thank you so much, sir. Nilesh sir, it was really a great session. I'm really thankful to Dr. Safia Farooqi ma'am, Director, Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning. She has given this opportunity to all our students of D.Y. Patil Vidyapeeth Center for Online Learning as well as Institute of Distance Learning, and even also to our whole staff of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth. And all of us have really got a lot of tips, lot of mantras for doing a meditation, and
making our life more and more happy. And really, we have got relaxed, and even we will likely to have more sessions of you as of this one. So this has initiated a spark among all of us that yes, definitely there is more things that we want to take away from you, and really we have got the great knowledge and great depth of a meditation. So thank you so much, sir, and even I'm thankful to Dr. Safia Faruqi ma'am also. Thank you so much. So now, if there are no questions, now we can officially declare that this particular program has been completed. Thank you so much. Yeah, Thank you. thank you for so much. inviting me. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes, sir.